आज एनिमल वेलफेयर से आप क्या उम्मीद और किस मदद की गुहार लेके आए हैं? मेरे पास दो ठोक रहते, बाकी बाहर से बच्चे जो दिल करता वही पेटियों में बंद करके अंदर में फेंक देता है। मैं सबको संभाल, हाँ जी जी, इसने पैदा नहीं करवाए हैं। जो बोलता है कि स्टेरिलाइजेशन ना होने के कारण पपीज आए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। स्टेरिलाइजेशन इसके यहाँ पर काफी बच्चों का मैंने भी करवाया है। कुछ बच्चे वहाँ पे बोरियों में भर के रात सुबह ये उठी है, वहाँ पे डॉग्स घूम रहे हैं, तो ये क्या खाना नहीं देगी उनको? ऐसे करते करते वहाँ डॉग्स की आबादी बढ़ी है। तो डॉग्स ना इसने पैदा करे हैं और ना ये कहीं से लेके आई है। और ये जो रूमर्स गलत फैलाए जाते हैं कि ये पैसा खा रही है, ये पैसा कहाँ जा रहा है आपके सामने ही है ना। ये कहाँ से पैसा जा रहा है, कहाँ जाएगा इसका पैसा? जी, और ये राजेंद्र नगर के एक ग्रुप है इन लोगों का, जिन्होंने इनके सारे कुत्तों को अडॉप्ट किया हुआ है। पूरी वैक्सीनेशन करवाते हैं वो वहाँ के सोनू जी हैं, जो कि राजेंद्र रीमा जी हैं। हाँ, सोनू जी रीमा जी इनका एक ग्रुप है और इनकी बहुत हेल्प करते हैं। और आप सबसे भी उम्मीद है आप भी इनकी हेल्प करिएगा। थैंक यू। ले जाते थे हमें सब लेने ला कर दिलवाए, कई बार भर भर के ले गए। Workers, survivors of communal violence, environmental issues and animals who cannot speak for themselves. A Supreme Court advocate and founder of the NGO Conference for Human Rights, she has been fighting the legal battle over the government's failure to implement sterilization rules for community dogs in the capital long before this crisis became news headlines. When the August 2025 order directing mass relocation of community dogs was passed, it was Nanita Sharma who stood before the Chief Justice of India. Report also in the Supreme Court. So I'm going to tell you a story today. एक कहानी बताऊंगी सबको. It's going to be mixed, okay, English and Hindi. So the whole story started since 2023, when there was a bill which was introduced, Livestock Products Importation and Exportation Bill 2023. This was a bill, it was a draft actually, which was highly debated, and इसमें dogs and cats को include कर रहे थे. Livestock तो था ही, cattle वगैरह तो थे ही थे. Now they were trying to include dogs and cats. So meaning that they wanted to export the meat of dogs and cats also. So this was in 2023. So it, it faced a lot of massive backlash, and that they are aggressive. This misuse of the order, this misinterpretation of the order is rampant now. And everywhere cruelty cases are happening. Everybody knows that. I don't need to get into it. I'm getting so many videos from different states of parts of India saying that ये यहाँ पे ऐसे हो रहा है, यहाँ पे ऐसे हो रहा है. Khalsa College में तो everybody knows what happened in Khalsa College. So all this is happening. Why? Because the order of 1905 is very vague. They said that no FIR can be filed against the municipal authorities or the authorities who are trying to pick up the dogs. No criminal complaints can be filed against them if they have acted bona fide. Who is going to oversee that? Who is going to see that whether they have acted bona fide or whether they have acted malified? So I would just like to end my speech with only one thing, that in Mahabharata, the story started with a dog and it ended with a dog. Then in Shraddh, हम लोग क्या करते हैं? कुत्ते की रोटी रखते हैं, गाय की रोटी रखते हैं. आज की डेट में कुत्ता सबसे बड़ा हमारा दुश्मन बन चुका है. So all this is, basically a manipulation by the authorities who have not done their jobs properly, और आज ये present crisis has occurred. Thank you so much. पाकिस्तान की पॉपुलेशन 150 करोड़ है. उसके अंदर हम हिंदू यानी जितने भी हमारे हम लोग हैं, ये 70 करोड़ कम से कम ये पशु लवर्स है. आप मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप ये हमारे पशु लवर्स के लिए ऐसा ना करें, इनको बेघर ना करें, इनके ऊपर जुल्म ना डालें. और आने वाले इलेक्शन में देखिए कि हम लोग आपका कितना साथ देते हैं.
आपकी गवर्नमेंट हमारे वोटों से बनेगी, समझे। अगर अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये हमारी जरूरत नहीं है तो शायद ये आपकी बड़ी भूल है। और दूसरी बात ये मैं कहना चाह रहा हूँ, मोदी जी आपकी सरकार है, आपके लिए आपने ही ये हमारे कहना मैं सब ये पशु लवर्स हैं और ये हमारे आगे बच्चे हैं, ये बच्चों का अगर ख्याल रखेंगे तो हम आपके साथ जी जान से हैं। लेकिन अगर हमारे पशुओं के ऊपर हमारे बच्चों के ऊपर कोई जुल्म करेंगे तो शायद हमारा दिल आपके साथ खड़े होने को नहीं करेगा। और मैं यहाँ तक कह रहा हूँ कि मेरे साथ में अगर 8-10 जने मिल करके यहाँ चले क्या कहते हैं बीजेपी हाउस में, तो मैं वहाँ पे जाकर के उन्हें चैलेंज से कह करके आऊँगा कि देखिए अगर आपने हमारे बात ना मानी तो आने वाले इलेक्शन में आपके जमानतें जब्त हो जाएंगी, फिर मत कहना। बहुत बढ़िया। और मैं सीधी सी बात ये है, मैं एक बात की बड़ी खुशी हो रही है, मैं ग्रेटर क्लास 2 से आया हूँ। हमारे एरिया के अंदर सारे के सारे यहाँ तक कि बहुत सारी लेडीज इतनी सेवा करती है, सारे के सारे लोग इतने दयावान हैं कि मैं बता नहीं सकता। अगर किसी डॉग को चोट लग जाए सारे के सारे, और यहाँ तक कि मेरे को बड़ी खुशी ये हो रही है, हमारे साथ में एक मुस्लिम महिला रहती है वहीं पे, वो डेली कम से कम नहीं तो 50-60 डॉगीज का खाना तैयार करके अपने नौकर को भेज करके सबका ख्याल करती हैं, सबको दे करके आती हैं। और लास्ट में मैं ये कहूँगा कि अगर मेरे साथ 5-7 या 8-10 जने मिल करके चले समझता हूँ, तो मेरी उनसे प्रार्थना भगवान जी ये हमारे बच्चों का ख्याल कीजिए। और मैं सबसे बड़ा तो मेरे को बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे बीच में आई हैं मेनका गांधी जी आती हैं, तो मैं उनका रियली खास तौर से मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। और ये लीजिए। Thank you sir, thank you so much. अब हम लोग जो बात करने आए हैं तो क्लैप फॉर योरसेल्फ। हमारे करुणावादी देश में अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा फैसला दे देती है कि डॉग्स को हटा दो, पता नहीं कहाँ लेके जाओ, कुछ भी करो, खैर सुप्रीम कोर्ट को मैं पर्सनली सीरियसली नहीं लेती हूँ, ऑनेस्टली बिल्कुल सीरियसली नहीं लेती हूँ, जीरो। रीजन बता दूं, बहुत सारे हैं, बट आई विल टेल माय ओन एक्सपीरियंसेस, बिकॉज इतने सारे एक्विटल्स उन्होंने कन्फेस्ड रेपिस्ट जिन्होंने बोल दिया कि मैंने बलात्कार किया, हत्या करी, उनको उन्होंने एक्विटल्स दे दिए। इतने सारे केसेस हैं मेरे पास। निर्भया में इन्होंने हमारे जूते चप्पल घिसवा दिए, वो तो पब्लिक प्रेशर नहीं होता तो वो उन्हें भी छोड़ देते। तो डू यू थिंक आई हैव एनी रिस्पेक्ट फॉर देम? वी शुड नॉट। डेफिनेटली एक और बात है हाँ कि बट सुप्रीम कोर्ट है भाई, so they can do what they want to do. They have said remove the dogs. Do you think dogs will be removed? No. Reason ये नहीं कि हम हैं, मैं बताऊँ वो खुद ही फेलियर है। हमारी कोई ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको याद होगा उसमें मैंने भी काफ़ी आवाज़ उठाई थी अबाउट शेल्टर होम इन मुजफ्फरपुर इन बिहार। वहाँ पर बच्चियों का शोषण हो रहा था, छोटी छोटी बच्चियों का, एंड politicians were involved. It became a big news because I had started doing a campaign and it became a big news and became a big controversial thing for the governments, but they did nothing about it. Supreme Court set up a committee कि भैया जैसे कि इसमें बोला कि नहीं, सब शेल्टर होम्स की जांच होनी चाहिए, सब शेल्टर होम्स पे ऑडिट होना चाहिए, कमेटी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ ह्यूमंस थे, यहाँ पे बच्चियाँ थी, जहाँ पर छोटी छोटी बच्चियों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, तब भी कुछ काम नहीं हुआ वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद। ऐसे हजारों जजमेंट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट बोल देता है, कोई कुछ सुनता ही नहीं है, क्योंकि करने वाले कौन है? ये कौन है? ये लोग करने वाले, इम्प्लीमेंटेशन करने वाले, दे ऑल करप्ट। हम लोग अलग अलग बातें करते हैं, लेट्स कम टुगेदर। आई नो हम लोगों में डिफरेंसेस हैं, बट इट्स ओके, वी माइट बी डिफरेंट बट वी आर फॉर द बेबीज, वी आर फॉर द बेबीज, वी आर टुगेदर फॉर द बेबीज। जब हम कितना भी आपस में लड़ भिड़ रहते हैं, हमारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं, सबके होते हैं। हम आपस में एक फैमिली है, फैमिली में माँ बाप की बच्चों की लड़ाई होती है, बट एंड ऑफ द डे जब कोई सामने से हम पे वार करता है, एज अ फैमिली वी स्टैंड टुगेदर, राइट? सो अपने डिफरेंसेस हटा के व्हेन वी आर फाइटिंग फॉर द बेबीज, फॉर ऑल द बेबीज, वी नीड टू बी टुगेदर। कोई आपस के मनमुटाव पीछे छोड़ देने, और हम छोड़ देते हैं। आई हैव नोटिस दैट। सो लेट्स गिव अनदर राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आवरसेल्फ फॉर दैट, क्योंकि हमें कितने भी प्रॉब्लम्स हो आपस में, हम लोग छोड़ के आते हैं इधर। हमको जो मांगना है सरकार से, वो एक डिमांड है, वो वेरी इंपॉर्टेंट डिमांड है
कि हमको एनिमल वेलफेयर मिनिस्ट्री चाहिए. We want animal welfare ministry. It's a high time we need animal welfare ministry. We need animal welfare commission. क्योंकि so called animal husbandry and fisheries वो लोग तो उल्टा नॉन वेज को बढ़ावा दे रहे हैं. बकरी पालो, गाय पालो, ये सब पालो, दूध बेचो, मछली पालो, मछली बेचो. बिल्कुल ऑपोजिट काम कर रहे हैं. We should discard it. They are not doing any animal welfare, rather they are promoting cruelty. Anybody who is eating non-veg definitely is promoting cruelty. हम लोग सिर्फ जानवरों में सिर्फ डॉग्स की बात नहीं कर रहे हैं. हम हिपोक्रेट हैं अगर हम सिर्फ डॉग्स की बात कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि नॉन-वेज खाओ, कुछ भी खाओ. अरे उससे बड़ी क्रूल्टी क्या है? हम लोग खुद जाते हैं केसेस में, यहाँ डॉग को मार दिया, चाकू मार दिया और हम लोग खड़े रहते हैं. वहाँ हमारे सामने बकरा कट रहा होता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. Don't we care about other animals? We do care about all the animals. So we need to discard this ministry and demand. ये हमारी major demand होनी चाहिए. Animal welfare ministry. Just remember, anybody ask you, हमें animal welfare ministry चाहिए. सरकारों को भी हम चिट्ठी लिख के वो उसकी मांग करेंगे. That's I think the only solution we should have. And yes, I am not as caregiver as you are. इतना समय मैं नहीं दे पाती हूँ. आई एम फीलिंग सॉरी फॉर दैट क्योंकि आप लोगों का योगदान बहुत बड़ा है. वट एवर लिटिल आई कैन मैनेज विद लिमिटेड टाइम आई हैव फ्रॉम दी अदर स्पेस आई हैव टेकन ओवर. जो छोटे छोटे बच्चों का जो शोषण हो रहा है हमारे देश में, दे आर रेपिंग एंड आई गेट केसेस ऑफ 1 year old, 2 year old, 3 year old. मतलब अंत ही नहीं है. रोज के रोज केसेस आते हैं और यू नो आई हैव टेकन इट एज अ मिशन टू मेक इंडिया रेप फ्री फॉर चिल्ड्रन एंड वुमेन. सो वो बहुत बड़ा मिशन है. So I know you will understand that you will spare me कि मैं कभी नहीं भी समय दे पाऊँ, but मेरा heart and soul is here. I do my best because यहाँ मेरी जान बसती है animal welfare पे, पर समय नहीं हो पाता. But I hope you all understand. And everybody calls me, but I am unable to be there on ground always. But my heart and soul is there. Thank you so much for calling me and asking me to speak. Thank you so much. Gentlemen, allow me to introduce Rahul Jhansla Yadav. He represents the power of young voices in public life. A law student. मैं बैठ जाती हूँ. मेरे को दे दो, मेरे फोन आ रहे होंगे ना. Thank you so much. He's known. Sorry, present. I stand corrected. I'm so sorry. Former बता दी. He's known for his commitment to public causes and grassroots engagement. His journey reflects a belief that leadership is not about holding a position, but about standing up when it matters most. And today, he stands with us in support of compassion, coexistence, and justice for the voiceless. A huge round of applause for Rahul Jhansla. थैंक यू सो मच. सबसे पहले तो मैं रोड फॉर राइट्स की पूरी टीम को धन्यवाद व्यक्त करूंगा कि आज उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म फिर से दिया है. इससे पहले हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक स्ट्रे एनिमल्स को हटाने का जो ऑर्डर्स आए थे उसके अगेंस्ट हमने एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया था. तो वहां भी जिस तरह आज मुझे उत्साहित फील हो रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ लोग एकत्रित हुए हैं उन बेजुबानों की आवाज बन करके, इसी तरह उस समय दिल्ली विश्वविद्यालय प्रांगण में भी सब लोग इतनी ही मजबूती के साथ इन बेजुबानों की आवाज बन करके आए थे. साथियों, हम देखते हैं कि आए दिन हम सुनते हैं एनिमल्स के खिलाफ, जो बेजुबान हैं उनके खिलाफ क्रूएल्टीज की खबर आती है, उनके खिलाफ यहां तक कि सेक्सुअल असॉल्ट तक की खबर हमें सुनने को आती है. लेकिन सरकारें इन सब को रोकने के लिए, मैं आप सभी से पूछता हूं कि क्या करती है. आपने देखा है कि कभी इस तरह की एट्रोसिटीज को, क्रूएल्टीज को रोकने के लिए किसी तरह कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया हो? बल्कि इनको रोकने की बजाय जो डॉग लवर्स हैं, जो फीडर्स हैं, सरकार उनको रोकने का काम करती है, उनके खिलाफ एक्शंस लेती है, उनको किसी न किसी गलत तरीके से या किसी केस में फंसा करके उन फीडर्स को रोकने का काम करती है. आज जो पीसीए एक्ट हुआ करता था, आज उतना कारगर नहीं बचा है जो उस समय था, क्योंकि ना ये आज
एनिमल्स के खिलाफ हो रही क्रूएल्टीज को रोकने में कारगर है, ना ही किसी कल्प्रिट को सख्त सजा दिलवाने के लिए कारगर है। तो आज इस प्लेटफॉर्म से मैं आप सभी के साथ, आप सभी के बीच आपके आवाज बन करके और उन बेजुबानों की आवाज बन करके पीसीए एक्ट में अमेंडमेंट की मांग को समर्थन देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अपने कुछ विचार शेयर करना चाहते हैं। भाई और बहनों, मुझे आज बड़ी खुशी है कि मेरे प्यारे कुत्ते जो कि हमारे भैरव की सवारी है, उसके लिए आप सब भारी संख्या में उपस्थित हुए हैं। और मैं ये कहते हुए गर्व अनुभव करता हूं कि आज जो मैं आपके सामने जिंदा खड़ा हूं, तो मेरे दो प्यारे कुत्तों ने, टॉमी और शेरू ने, मेरे लिए अपनी जान दी है। आज सुप्रीम कोर्ट के जज जो कुत्तों पर अत्याचार कर रहे हैं, उन्होंने मेरे ऊपर भी अत्याचार किया। हिंदुस्तान का कानून कहता है कि किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। एक अपराध के लिए एक ही मुकदमा और एक ही सजा है। किंतु आज भी, क्योंकि मैं इनके अन्याय को समझ गया था, मेरे ऊपर कटक में, दिल्ली में, भद्रक में, उड़ीसा में 4-4 मुकदमे चल रहे हैं एक अपराध के। एक व्हाट्सएप संदेश था, दिल्ली से जारी किया गया, मेरे पकड़कर 14 महीने जेल में डाल दिया, क्योंकि मैं समझ गया था कि जो जितना भी अन्याय चल रहा है ये सुप्रीम कोर्ट से चल रहा है। आज पशु जन्म नियंत्रण कानून है, वो क्या कहता है? वो कहता है कि पकड़े गए कुत्तों को टीकाकरण के बाद उसी स्थान पर छोड़ा जाएगा जहां से उनको पकड़ा गया है। किंतु जेबी पारदीवाल, जिस पारसी को हमने हिंदुस्तान में पढ़ा दी थी, वो इस देश को कानून को नहीं मानता। वो जबरदस्ती लिखता है अपने आदेश में कि पकड़े गए कुत्तों को उस स्थान पर नहीं छोड़ा जाए जहां से उनको पकड़ा गया। मैं ये जानबूझकर कानून से ऊपर लिख रहा हूं। स्कूलों से जो कुत्ते पकड़े जाए उनको वहां ना छोड़ा जाए। तुम्हारे बाप का राज चल रहा है क्या ये? जब भारत सरकार कहती है कि पकड़े गए कुत्तों को उसी स्थान पर छोड़ा जाएगा और तुम कहते हो नहीं छोड़ा जाएगा, तुम्हारी ईट सीट बजा देगा ये मुकेश जैन अकेला ही काफी है तुम्हारे लिए। और उनको पिंजरों में डाल दो। मैं उस लड़की छवि शर्मा के घर जाकर उससे मिलकर आया हूं, उसके परिवार के लोग बात किए, वो रेबीज से मरी नहीं। वो डॉक्टरों ने, और ये कहते हैं जो विक्रम नाथ थे, ये जज कहते हैं कि वो मामला मत उठाओ कि वो रेबीज से मरी नहीं। अरे जब तुम स्व संज्ञान लेकर कहते हो कि रेबीज से मरी है, उसका संज्ञान लेते हो, कुत्तों पर अत्याचार करते हो, मेरे प्यार कुत्तों, और पशु जन्म नियंत्रण कानून का उल्लंघन करके पशुओं पर अत्याचार, कुत्तों पर अत्याचार कर लो, ये सब ठीक नहीं है और ये तुम्हें शोभा नहीं देता। और मैं महामहिम राष्ट्रपति मोदी जी से अपील करता हूं, इन जजों के खिलाफ महाभियोग लाया जाए। उनको ये इस पद पर रहने काबिल नहीं है जो भारत सरकार के कानून को नहीं मानते। भारत माता की जय। जय श्री राम। We should all focus for a second because we are here for a purpose. Everybody is given their time and energy on a Saturday. So, as far as I am concerned, this judgment is not balanced and you are being misled. So, and I'll tell you why you're being misled. So the ABC rules say that you have to capture the dog, you have to vaccinate, you have to sterilize, and you have to release. When ABC rules does not exist equally for all the dogs, it does not mean anything. There is going to be no, as animal welfare volunteers, we are not going to accept the SOP. As Mala ma'am has been talking loudly, fiercely, and repeatedly, I would like all of you to know one thing. The SOP is never going to benefit, the AWVI SOP for the animals is not going to benefit even a single animal. We have to start talking about all the cows that they're going to capture. We get very occupied with talking about dogs. Cows are being used for votes and yet they're being slaughtered every day. So yes, you can love animals, you can love a specific animal. I love dogs. I might not work with cows, but we cannot deny the fact that we are the second largest beef exporter in the world, right? अगर गौशाला अच्छे से चल रही होती तो गाय रोड पे नहीं होती। अगर जिस मुद्दे पे वोट लिया था, अगर वो पूरा नहीं हुआ तो आज हमारे कुत्ते भी गौशाला में डालने की बात हो रही है। So you are all being, I just want to say things from the heart. I might not follow my script right now, but
The court has said put them in gaushalas, put them in existing facilities. The existing facilities are already a death sentence. We were all outside Rohini, right? We saw what ABC centers look like. It was a volunteer movement. Nobody from the movement who could have helped us at that time. We cried, we saw skeletons. हम लोग बाहर खड़े थे, कुत्ते अंदर से चीख चिल्ला रहे थे. उनको उठा के कहाँ डाला गया, कहाँ नहीं डाला गया. We still don't know about those dogs, right? So my first request is going to be, अगर आप कोई केस उठाते हैं करने के लिए, उसको आप पहले पूरा करिए. अगर आपने कंप्लेंट डाली है, उसके बाद आप FIR के लिए फॉलो अप करिए. FIR नहीं तो आप कोर्ट जाइए, आप 156(3) लगाइए. बट अगर आप एक भी केस अच्छे से करोगे, our lawyers will have enough to represent in the court, right? We need to focus on the cruelty. If the judges are not focusing on the cruelty, we have to make sure that they do. There has to be a law for animal rape. Cows are being raped every day. Dogs are being raped every day. And they say we want to help humans, we want to help children. It's a known fact, it's a known study कि जो जानवरों के साथ बुरा करते हैं वही आगे जाके इंसानों के साथ बुरा करते हैं, right? So let's stop pretending that everything is good. There is a sense of urgency. I have been personally fighting against a narrative on social media. My page does not get the reach that it should, but we are all trying very, very hard that we talk about the judgment, we talk about the judgment the way it is, and we will fight it till the end. And this is a people's movement. This has nothing to do with, like Vikas always says, this has got nothing to do with tenders, this has got nothing to do with politics. It is the common man like everyone, all of you who've come here, जो रोज रात को खाना खिलाते हैं, जो गाड़ियों में ले लेके भागते हैं, है ना, ट्रीटमेंट के लिए, ये आपका मूवमेंट है, ये मेरा मूवमेंट है, ठीक है? So do not forget that. Do not stop saying the SOPs are bad. We are not going to let our animals get caged. We are not going to euthanize our animals because that is against the damn constitution and it is against the principles of Hinduism. Across every religious, we do not want to hurt animals. So I'm making an appeal today. I might sound angry. I always sound angry to everybody. But my anger keeps me driven. I want you to channelize your anger. I want you to come together. If anybody says ये protest की permission नहीं है और ये नहीं है, आप protest पे आएं. एक एक इंसान matter करता है. जिसने कहा था कि ये protest is not the way it is, first of all, kudos to Rashim, kudos to Nimisha. If they had not stood their ground, आज आपको ये जगह, we would have not been here together, right? So let's give the credit when it's due, and you have to unite. If you don't unite, we are not going to be able to save our animals. That's all I'm going to say. Thank you. Thank you so much for being this beautiful audience that you've been, and thank you so much for the time that you have taken out away from work, away from family, away from everything that needed your attention. But this is equally important. To wrap up the day, I have Abhinav Shrihan who wants to give us a few pointers on what next. Abhinav? करना है, ठीक है? सत्याग्रह पे बैठ सकते हैं हम लोग जो गांधी जी तरीका में दिखा के गए हैं. आपको पता है आज़ादी की क्रांति की जो पहली हमारी हुई थी 1857 में, उससे पहले डॉग्स के लिए 1832 में, जिसको बॉम्बे डॉग राइट्स कहा जाता है, सारे हिंदुस्तानी एकजुट हुए थे अंग्रेजों की सरकार के खिलाफ. उस सड़कों पे उतरे, उन्होंने लोगों के उनके साथ कोई भी कॉपरेशन बंद कर दिया. अंग्रेज उसके बाद प्रोटेस्ट होते रहे सड़कों पे. अंग्रेजों ने कहा जो सड़क पे उतरेगा कुत्तों को बचाने के लिए उसे गोली मार दी जाएगी. लोगों ने क्या किया? लोग घरों पे बैठ गए पर बॉयकॉट जारी रखा. आपको इस सरकार का बॉयकॉट करना है. जो उद्योगपति इस सरकार के साथ हमारा देश खरीद रहे हैं, जो हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं, उन सबको बॉयकॉट करना है. बड़ी जल्दी 150 कम से कम 150 से 250 प्रोडक्ट की हम लिस्ट बना के डालेंगे जो इन उद्योगपतियों के प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो अदानी के हैं चाहे अंबानी के हैं. आपको सबको उनका बॉयकॉट करना है, घर बैठ के बॉयकॉट करना है. सड़क पे जो सत्याग्रह पे बैठ सकते हैं, अगर 2 आदमी भी बैठ सकते हैं पीछे बैठने के लिए, अपने आप को आज कम लोग दिख रहे होंगे. जब अन्ना हजारे बैठे थे उसके बाद लोग आने शुरू हुए थे. जब यहाँ भी 2 लोग 4 लोग अगर बैठ जाएंगे, अब अगर हम बैठेंगे ना परमिशन लेके बार बार 2-2 दिन के लिए, सुबह से शाम तक के लिए नहीं बैठेंगे. आप बैठेंगे तो मरने तक के लिए बैठेंगे, ठीक है? या जीत के जाएंगे या लाश ही जाएंगी यहाँ से. फिर उस चीज के लिए रेडी हो जाइए. अगर हमें खुद को तकलीफ नहीं होगी तो हम सरकार को भी नहीं दे पाएंगे कुछ तकलीफ होगी तभी वो सुनने हमारे पास आएंगे.
ये इवेंट हमने कर लिए बहुत सारे, ठीक है, बहुत हो गया ये। इसके बाद अगर हम बैठेंगे तो उठेंगे नहीं, ठीक है। बायकॉट की लिस्ट डालूंगा, आप सब तक वो बायकॉट की लिस्ट पहुंचेगी। आप सबको अपने लेवल पे करना है, अपने दोस्तों को बताना है, अपने कोलीग्स को बताना है। जियो के फोन आपको पोर्ट करने नहीं रखेंगे हम, अगर ये उद्योगपति हमारे देश बेचेंगे तो हम इनको